स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने करा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड उसके एग्जांपल्स, एंड टुडे वी आर डूइंग इरेशनल नंबर्स. व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट आर रैशनल नंबर्स. What are rational numbers? Those numbers which can be expressed in the form of P by Q. Numbers which can be expressed in the form of P by Q, where Q should not be 0 and P and Q are co-prime नंबर्स. ये हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स को अगर हम और एक्सपेंड करें, किस तरीके से हम रैशनल नंबर्स का पता लगा सकते हैं? जब भी हमारा नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होगा, एक तो ये कि q जीरो नहीं होगा, एंड कोई भी नंबर अगर हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो नंबर हमेशा जो हमारा होगा वो डेसिमल एक्सपेंशन टू फॉर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. वन इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में अगर हम नंबर को लिख सकते हैं वो हमारे क्या होंगे? दोज आर rational numbers and can be expressed in the form of p by q. For example, 1.25 is a terminating decimal because decimal के बाद जो digits हैं they terminate, so this is a terminating decimal number. और 3.752, this is a terminating decimal expansion. So these numbers can be expressed in the form of p by q. And one more thing, जो हमारे rational numbers होते हैं, second, they can be non-terminating also, but repeating, means non-terminating and repeating. Non-terminating and repeating decimal expansion. So those which have terminating decimal expansion like these numbers and non-terminating and repeating decimals like 1.3777 means इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा, बट इट इज रिपीटिंग. बिकॉज इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1.37 बार, 1.37 बार. और इफ आई राइट 1.2333 एंड सो ऑन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1.23 बार. So these numbers are non-terminating, मतलब डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, एंड दे आर रिपीटिंग, मतलब कि जो डिजिट है वो रिपीट होता जा रहा है. सो एवरी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड non-terminating repeating decimal expansion, they are rational numbers. Means these numbers can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime numbers. Co-prime numbers मैंने बताया था, co-prime numbers are those which do not have a common factor other than 1. So these are rational numbers. Now we talk about irrational numbers. What are irrational numbers? Irrational numbers हमारे क्या होते हैं? Those which can be expressed in the form of p by q are rational numbers. Those which cannot be expressed in the form of p by q are irrational numbers. Those numbers
which cannot be expressed as P by Q form where Q is not equal to 0 are called irrational numbers. And according to the decimal places, जैसे हमने अभी रैशनल नंबर्स को हमने कैटेगराइज करा कि भाई वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं. इरेशनल नंबर्स जो भी नंबर्स होते हैं हमारे, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, those numbers which have decimal expansion in the form non repeating and non टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे. पीछे हमने क्या करा था, टर्मिनेट नहीं हो रहे थे बट रिपीट कर रहे थे, तो वो रैशनल नंबर थे. बट हियर दीज आर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. लाइक आई से 1.3201 001 0001 00001 and so on. It is non-terminating and non-repeating. Digits repeat भी नहीं हो रहे. So those numbers which have decimal expansion of non-repeating and non-terminating form are called irrational numbers. और irrational numbers हमारे क्या होते हैं, simply जो भी numbers हम रूट के अंदर लिखते हैं, like root 2 is irrational, root 3 is irrational, root 4 is not irrational because root 4 is 2 is rational. So root 5, root 6 and so on. So जितने भी नंबर्स हमारे रूट में होते हैं, दे आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर. जैसे 4 2 स्क्वायर होता है तो 4 का जो रूट है वो 2 हो गया. 9, root 9 is not irrational. So these numbers are irrational numbers. Now we can categorize like 1.325, 3.237 bar, 3.730200300004 and so on, and pi also. See here, these two numbers, in first case this is a terminating decimal number, this is non-terminating but repeating because 373737 आता जाएगा. तो इसका मतलब these two numbers are rational numbers and can be expressed in the form of P by Q. Here we have 3.732. It is non-terminating and non-repeating. Pi is also an irrational number. So these two numbers are irrational numbers. अब हम आते हैं इरेशनल नंबर पर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा. लाइक हमें प्रूव करना है कि जो नंबर है वो हमारा इरेशनल है या नहीं है. फॉर एग्जांपल, सीधा हम एग्जांपल से ही करेंगे. क्या फॉर्मेट है नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए. लाइक वी हैव अ क्वेश्चन, प्रूव दैट root 2 is irrational. हमें ये प्रूव करना है that root 2 is an irrational number. So how do we prove it?
हम क्या करते हैं, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं, हमें रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना है. लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज नॉट इरेशनल. इफ रूट टू इज नॉट इरेशनल मीन्स इट इज रैशनल, बिकॉज या तो नंबर हमारा रैशनल होता है या इरेशनल होता है. इफ इट इज नॉट इरेशनल मीन्स इट इज रैशनल. सो वी अज्यूम दैट रूट टू इज नॉट इरेशनल, दैट मीन्स रूट टू इज रैशनल. सो वी सपोज रूट टू इज रैशनल. हमने अज्यूम कर लिया रूट टू जो है वो हमारा रैशनल नंबर है. एंड इफ रूट टू इज अ रैशनल नंबर मीन्स इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. सो रूट टू कैन बी रिटन एज p बाय q, वेयर ये हमें यहां पर डिस्क्राइब करना जरूरी है, where p and q are co-prime numbers and q is not equal to 0. लाइक रूट टू को हमने p बाई क्यू अज्यूम कर लिया, रैशनल अज्यूम कर लिया. अब हम क्या करते हैं, दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू रूट टू क्यू. क्यू को हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, वी गेट P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर, बिकॉज रूट टू का स्क्वायर इज 2, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर. सो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर. ये हमारा यहां पर आ गया. सी अगर p स्क्वायर हमारा 2 का मल्टीपल है, मतलब 2q स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2. हमने लास्ट टाइम थ्योरम किया था जो हमारी एडिशनल थ्योरम थी, फंडामेंटल जो प्रिंसिपल था हमारा अर्थमेटिक का. तो अगर p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है दैट मीन्स p इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2. सिंस p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब कि जो p स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है. देयरफॉर p इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2. p भी हमारा 2 का मल्टीपल हो जाएगा, राइट. अब p अगर हमारा 2 का मल्टीपल है तो हम p को कोई नंबर अज्यूम कर सकते हैं 2 का मल्टीपल. So let P is equal to 2C, where C is any natural number, right. अब हम क्या करते हैं, P जो है हमारा वो क्या है, 2 का मल्टीपल है, हमने P को 2C अज्यूम कर लिया. अब हम क्या करते हैं, P इज इक्वल टू 2C, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट P स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर. P स्क्वायर जो है वो 4C स्क्वायर के इक्वल हो गया. एंड जो हमारा P स्क्वायर है वो हमारा किसके इक्वल था, P स्क्वायर हमारा किसके इक्वल था, 2Q स्क्वायर के इक्वल था. P स्क्वायर हमारा 2Q स्क्वायर के इक्वल था. तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं एंड इसको हम इक्वेशन 2 अज्यूम कर लेते हैं. हेयर P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर एंड हेयर P स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर, राइट. दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर, बिकॉज P स्क्वायर हमारा 4C स्क्वायर आया एंड P स्क्वायर हमारा 2Q स्क्वायर के इक्वल था. दैट मीन्स 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर, राइट. नाउ ये कैंसिल हो गया, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर. दैट मीन्स Q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2. दिस इंप्लाइज
q square is a multiple of 2, therefore q is also a multiple of 2. Since P and Q are both multiple of 2, that means they are not co-prime. और हमने क्या assume करा था, P and Q are co-prime, तो हम ये statement लिख देते हैं, but P and Q are co-prime. इसका मतलब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये हमारी जो हैं ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. यहाँ पर P एंड Q दोनों मल्टीपल ऑफ 2 हैं, बट P एंड Q को प्राइम नंबर्स हैं, मीन्स दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1. इसका मतलब जो हमने अजम्पशन ली है वो हमारी रॉन्ग है, तो हम इस कॉन्ट्राडिक्शन को लिखते हैं अब. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट, सो our assumption that root 2 is rational proved wrong. हमारी जो ये हमने जो assumption ली थी वो wrong प्रूव हो गई. दिस implies, मतलब रूट 2 जो है वो हमारा रैशनल नहीं है, और अगर वो रैशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इरेशनल है. दिस इंप्लाइज रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं. तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, जो भी नंबर्स हैं हमें अगर इरेशनल प्रूफ करने तो हम इस फॉर्मेट में प्रूफ कर सकते हैं. बिल्कुल सेम एज इट इज चलेगा, रूट 2 की जगह रूट 3 चलेगा. अब मैं इसी में एक और एडिशनल क्वेश्चन लेकर चलता हूं जिसमें हमें प्रूफ करना होगा इरेशनल. तो हम किस तरीके से प्रूफ करते हैं. क्वेश्चन इज प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल. हमें यह प्रूव करना है कि जो 2 प्लस रूट 3 है वो इरेशनल नंबर है. ये क्वेश्चन हमारा दो टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है. एक तो ये कि पहले ये प्रूव करो रूट 3 इज इरेशनल, मतलब क्वेश्चन ऐसे होगा, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल एंड हेंस प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज ऑल्सो इरेशनल. तो इस केस में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रूट 3 का पूरा केस करना पड़ेगा, मतलब रूट 3 को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना पड़ेगा, एंड उसके बाद जो प्रोसीजर हम यहां पर अप्लाई करेंगे वो अप्लाई होगा. बट क्वेश्चन अगर सिर्फ ये गिवन है प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल, तो इस केस में हमें पहले रूट 3 को इरेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट गिवन. अगर क्वेश्चन में होगा कि रूट 3 को पहले प्रूव करो तो करना है, अदरवाइज डायरेक्टली करना है. कैसे करेंगे वो मैं ये स्टार्ट करता हूं. इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है. हम क्या करते हैं, रैशनल अज्यूम कर लेते हैं. लेट 2 प्लस रूट 3 इज रैशनल. अगर ये हमारा रैशनल है सो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. देयरफॉर 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर P and Q are co-prime numbers, means they do not have a common factor other than 1, and Q is not equal to 0. right? अब हम क्या करते हैं, 2 को हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं. Now root 3 is equal to P upon Q minus 2. So root 3 is equal to
p माइनस 2q अपॉन q. सी p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब p माइनस 2q अपॉन q जो है वो हमारा रैशनल ही होगा, सिंस p and q are co-prime numbers. This implies p minus 2q upon q is rational where q is not equal to 0. तो p minus 2q upon q is rational and root 3 is an irrational number. ये रिजल्ट तो हमें पता ही है that root 3 is an irrational number, so they cannot be equal. So root 3 and p minus 2q upon q can't be equal. ये इक्वल नहीं हो सकते. और हमारा क्या आ गया था कि ये इक्वल आ गया था. क्यों इक्वल आ गया था? क्योंकि हमने इसे रैशनल अज्यूम किया था. दैट मीन्स आवर अजम्पशन, मतलब हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग प्रूव हो गई. आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. और हमने क्या अज्यूम करा था? 2 प्लस रूट 3 को रैशनल अज्यूम करा था और वो रॉन्ग प्रूव हो गया. इसका मतलब 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल.